मेरे से ज़्यादा का मालूम वाइस प्रेसिडेंट फारूक साहब करते हैं। और सबको तो 13 तारीख को शाम को मालूम हो गया। मेरे 10 तारीख सुबह में मैं वोट डाल के अन्ना इडली में इडली खा रहा था। मैडम मेरे बाजू में आके बाजू के टेबल पे आके इडली खा रहे थे। इतने सुकून से उस दिन मेरे उनका रिजल्ट मालूम हो गया। क्योंकि जो आदमी इलेक्शन में खड़ा होता है उस बहुत टेंशन में रहता है, मगर मैडम इतने सुकून से इतने आराम से बैठ के इडली खा रहे थे। मैं मिसेस को बोला मैडम गारंटी जीत के आते इस बार। तो मैडम मेरा आपसे पहला भी मुलाकात हुआ, नागरेश्वर स्कूल में सेक्रेटरी था मैं। तो आज मैं इधर इंडस्ट्रियल एरिया का प्रेसिडेंट हूँ। एक रिक्वेस्ट है, मेरा क्लासमेट शरणप्पा दर्शनापुर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बने। इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत प्रॉब्लम्स है मैडम, आपके एरिया में आता है। दर्शनापुर साहब को भी मैं बोलता हूँ आप ज़रा वहाँ गवर्नमेंट लेवल पे काम करा के ज़रा इसको काम करा के दिया तो अच्छा हो जाता है। थैंक यू मैडम। ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ। ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಖನಿಜಾ ಫಾತಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇರುಗಂಜಿನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಸುಮಾರು 5 ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೆ ಕರೆಂಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಥ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ। ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫಾರೂಕ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆವು ಶಾಸಕರಿಗೆ। ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ APMC ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರು। ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ರೀ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಭಾಳ ತಕ್ಲೀಫದ, ಇಂಥ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ। 5 ದಿವಸ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಭಾಳ ತಕ್ಲೀಫ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜರ ತಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ। ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ನೀನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆದರು। ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ನೀನು ಕರೆಂಟ್ ತರಲೇಬೇಕು, ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಲೈಟ್ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗಡಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು 3 ದಿವಸ ಹಿಡಿದು ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ತಾನು ನಿಂತು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನು। ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಮೇಡಮ್ ಅವರಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 15 ದಿವಸ ಆದರೂ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ। ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಬಿ ಭಾಳ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಭಾಬಿ ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಆನಂದವಾಗಿದೆ। ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ದರೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈಗಂತೂ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಏನಿತ್ತು ವಿಚಾರ, ಆ ವಿಚಾರದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। 100% ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ। ಅವ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ದಾಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಏನು ಭೀ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋದ್ರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर ये जो तहनीती प्रोग्राम रखा है, तमाम गुलबर्गा वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने दुआओं के साथ मेहनत भी की है, कोशिश की है। जो आज ये नतीजा निकला है हमारा, ये सबकी कामयाबी है, मेरी एक ही कामयाबी नहीं है, गुलबर्गा नॉर्थ की कामयाबी है। इससे पहले भी आप लोगों ने सपोर्ट किया था मुझे, मगर इस बार जो जोश में जो लोग है और अब होने के बाद जो खुशियां मना रहे हैं लोग, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को आके 4 दिन हो गया कंटिन्यूस लोग घर पे आ रहे हैं फूल वगैरह लेकर और अपना खुशी का इजहार कर रहे हैं। और मैं अभी मेरा भी फ़र्ज़ है, अब जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स है पूरे गुलबर्गा के, इंशाल्लाह ताला मैं हल करने की कोशिश करूँगी भी और करूँगी भी इंशाल्लाह ताला। और ये बहुत बड़ी बात है, जो लोगों ने जो मेहनत की है, दुआएं किए हैं, ये बग़ैर उसके तो इम्पॉसिबल था ये जीतना, क्योंकि आप देख रहे थे कि ये इलेक्शन काफ़ी टफ इलेक्शन था। सबसे ज़्यादा टफ इलेक्शन हमारा इलेक्शन था।
और इसको आसानी से हम लोगों ने मुत्तहिद होकर हम लोगों ने इसको जीता है। इत्तेहाद को कायम रखें और हम सब इसी तरह मुत्तहिद रहकर लड़ें। यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलजुल कर रहते हैं। कमरुल इस्लाम साहब ने जो इत्तेहाद बना के रखा है उसको हम लेके चलेंगे आने वाले दिनों में भी। चाहे कोई भी कुछ कोशिश करे, हम सब मिलजुल कर रहेंगे गुलबर्गा में। और जो भी काम आप लोगों के हैं आने वाले दिनों में, मैं अब तक सारे काम आप लोगों के, क्योंकि मेरे साथ भी जो बड़ा ग्रुप है आप लोग देख रहे हैं कि तमाम सब हम मिल के काम करते हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, तमाम हम सब मिल के काम करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो भी आप लोगों के मसले मसाइल हैं हम पूरे हल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वार्ड वाइज काम होना चाहिए और हर महीना 2 वार्ड या 3 वार्ड में मीटिंग रख के वहाँ के मसले मसाइल जो भी है हल करना है। तो इंशाल्लाह ताला वो मीटिंग्स भी शुरू होंगे, क्योंकि अब थोड़ा ऐसा लोग इतनी खुशी में आ रहे हैं घर को, वो रोक भी नहीं सकते उन लोगों को। ये ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह ताला वो काम शुरू होगा और जो जो भी मसले लोगों के हैं उनके घर उनके एरिया में जाके हम लोग हल करेंगे। शुक्रिया। जुमला देखा था वाह गुलबर्गा, तो उसी से मैं अपना आगाज़ करूँगा कि यकीनन आप लोगों ने वाह गुलबर्गा की जो चीज़ जो बुलवाई है ना, ये काबिल तारीफ़ है और सराहने के काबिल है। यकीनन वो राहुल गांधी के वो जुमले हैं कि नफ़रत की दुकानें बंद हो गई, मोहब्बत का बाज़ार खुल गया। जो नफ़रत फैलाने वाली जो चीज़ें हो रही थी, यकीनन आप लोगों ने इस बात का सबूत दिया है कि नफ़रत भले ही कितनी ही फैलाई जाए, लेकिन हम अपने शहर को अमन व सुकून का गहवारा बना के रखेंगे। और मैं इस बात पर आप सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि एक जहती का जो आप लोगों ने मुजाहिरा किया है और अक्ल और दानिशमंदी दूर अंदेशी का जो मुजाहिरा किया है, ये बात यकीनन काबिल तहसीन है, काबिल मुबारकबाद है। बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, तशवीश बढ़ रही थी, कई तरह की चीज़ें हो रही थी, सारे काम होना करना ये सब अपनी जगह पर, हम हक से इंशाल्लाह मैडम से लड़के वो सारे काम करवाएंगे। उससे पहले आपने जो किया है ये बहुत अच्छी बात की, आपने काम किया है। मैं इस पर एक बात और ये भी कहूँगा कि जो चीज़ मरहूम कमरुल इस्लाम साहब चाहते थे, आज चूँकि उस वक्त में हमको वो शऊर नहीं था, लेकिन आज चूँकि शऊर आने के बाद हम उन बातों को, उन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं कि यकीनन उन्होंने हमारे इलाके को अमन व सुकून का गहवारा जो हम बोलते हैं वो करके यहाँ पे गए। इसी को हमको जारी व सारी रखना है और वो बातें जो अहमद साहब ने की है, बस वही चीज़ों की मैं तायीद भी करता हूँ। और अवामुन नास के जो काम हैं, जो चीज़ें हैं, उनके सारी बातें हम लोगों ने जो है ना उनके सामने रखी है, मैडम के सामने रखी है। बस यही कहूँगा कि जिस तरह से हमारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, बस उस पर हमको जो है वो सारे काम हमारे जो भी आपके पास आएंगे, मेरी रिक्वेस्ट है कि हमको वो काम करा के दें। अल्लाह आपको खूब तरक्की अता फरमाए, खूब कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह आपको और मज़ीद जो है बुलंदी अता फरमाए। स्पेसिफिकली मैं जिनको जानता हूँ मैं उन सबको मुबारक पेश करता हूँ और जो हाजिर नहीं है उनको भी मैं अपनी तरफ से मुबारक पेश करता हूँ। कई रास्ता था और जीत ज़रूरी थी और इंशाल्लाह हम जीत गए। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि मैडम को, खैर मिनिस्ट्री तो ख़त्म हो चुकी है, एक ऐसा ओहदा दे जिससे सारे हम लोगों के, ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको जो है ना मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये भी हम दुआ करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी या फिर हमेशा मैडम के साथ हैं। आपको कभी भी कोई भी तकलीफ़ हो जाए या फिर कभी भी आधी रात को भी ज़रूरत है तो हम कंधे से कंधा लगा के मैडम के साथ रहेंगे। और इंशाल्लाह सारे जो भी लोग हैं सब मेहनत करे हुए हैं, सबको मुबारकबाद है। मैडम को भी हम मुबारकबाद देते हैं, इस इत्मीनान दिलाते हैं कि हम हमेशा आपके साथ हैं और हमारे सारों के दुआएं हैं कि आपको अच्छी से अच्छे मुकाम पे अब इंशाल्लाह 8-15 दिन में कुछ ओहदे मिलने वाले हैं, ज़रूर मिले इंशाल्लाह, ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। तमाम उन अहबाब का जिन्होंने मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा के हक़ में वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाबी अता दिलाई। लोगों को मुत्तहिद करने में, शहर के अमन के लिए, बहाली के लिए, और गुलबर्गा शहर के जो पिछले 40-45 साल से हमारे और आपके आबो अजदाद ने, बुजुर्गों ने जो शहर के लिए फ़िक्र की थी, वो फ़िक्र करने वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कुछ हजरात ऐसे भी हैं
जिन्होंने हमारी फिक्र के साथ जुड़े थे, लेकिन 80,000 यहाँ पे जमाव नहीं है, लेकिन बराबर कहीं ना कहीं एक दूसरे का राब्त रहा है। तो वो फिक्र का ही नतीजा जो है 13 तारीख को हमारे और आपके बीच में आया है। मोहतरमा कनीस फातिमा साहबा के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में और फर्दन हमारे बारे में बहुत सारी राय आए हैं। सियासी दौर रहता है, इलेक्शन रहता है, इलेक्शन के दौरान में बहुत सारे फाल्स प्रोपोगंडा होते हैं, लेकिन मैं रब्बानी साहब, अजीज साहब, जो इंटेलेक्चुअल से ग्रुप बनाया गया था शहरियान गुलबर्गा में, कुछ लोगों ने जो ग्रुप बनाया था, मैं उनका तहे दिल से हमारी पार्टी की तरफ से और मोहतरमा की तरफ से शुक्रिया अदा